Hello and welcome at Exam Zone 24/7. It is visible in the thumbnail that we are going to discuss all things about the recent notification of Bank of Maharashtra for Generalist Officer Scale 2. As we are already discussing about interview session of SBI CBO, we will be continuing over the session, but before that we will be going through the details of Bank of Maharashtra. This is a best opportunity, you may say, as a golden opportunity, especially for private sector employees. Exam level easy. Exam level in Bank of Maharashtra skill 2 or 3 any generalist officer is very easy, and even the English section and others are so easy then you can score 20 out of 20 in English. Very easy, very easy. You must focus only on professional knowledge section. This is also simply fact-based questions always, like priority sector lending, new guidelines, RBI circulars, SSG, general banking, core banking, NI Act, and in NI Act generally crossing, etc. Asked, nothing more than that. But see, here also interview is a major part. Okay, so be careful when you will be attending the interview. But by that time, we will be going through the details and along with the preparation strategy. Okay. First, we will know what is the level, what is the exam level. Okay. Easy, always easy. Okay. And comparatively, for more easy as compared to RRB scale 2 and 3 exam IBPS. IBPS का एग्जाम अगर ये है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम ये है. दिस इज द वेरी मच डिफरेंस इन एग्जाम लेवल. And if you think that SBI CBO, I will be going that this is the SBI CBO, this is the RRB exam, and this is the Bank of Maharashtra exam. Even in Bank of Maharashtra exam, you may get into almost with nil preparation. Okay, it is very easy, and you will find that whenever you will attend the interview, there are more candidates only from private sector banks, and banks which are core public sector banks, there will be almost no one in the interview of Bank of Maharashtra. It is very rare that they will be switching here. But in SBI CBO, you may find some candidates and which are actually POs or 1 or 2 year worked in the public sector banks, then only will be giving in SBI CBO. Okay. Then SBI CBO, first you need to IBPS RRB, then SBI CBO, and then BOM scale 2, 3. Okay. So you find that this is comparatively far more easy to crack this exam. So it is a better opportunity. It is good that comparatively questions are asked are easy.
in sense they are generally only fact based one liner questions. Okay, however there may be some more in interview. It is their way how to conduct the interview and all. Okay. So we will be discussing all the details related to this, your preparation strategy. And you see, here is the notification. It is the generalist officer exam, means like generalist officer means an officer who will be involved in all works is except the specialized works, but as and when required he may be posted. This says overall 500 vacancies are there and category wise vacancies are already given. See whether you are eligible or not. Qualification is a bachelor degree, minimum 60% मार्क्स, तो कुछ लोग इसमें छट सकते हैं, बैचलर डिग्री इन 60% मार्क्स. ओके. डिजायरेबल इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक सीएमए, सीएफए, आईसीडब्ल्यू. अभी ये इस बैंक को ये लगता है कि कोई बंदा सीएफए करके स्केल 2 बनने आएगा इधर. ऐसा कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को लग रहा होगा, उनको शायद ये पता नहीं है कि सीएफए क्या होता है, और उनके पास सीएफए अभी होंगे भी नहीं, ये भी नहीं पता. सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके वो यूएसए की रिमोट जॉब यहाँ पर करके $3,000 to $4,000 पर प्रोजेक्ट नहीं कमा सकाएगा, इनके पास आएगा. किस दुनिया में है पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तो पता करना मुश्किल है. देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, पासिंग ऑफ जीआईबी एंड सीआईबी इज डिजायरेबल. पब्लिक सेक्टर बैंक की यही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है. उनको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है, जस्ट जेआईआईबी सीआईआईबी. तो भाई इसको कर लो, ठीक है. जेआईबी सीआईबी इज ए गुड एग्जाम, बट सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और आईसीडब्ल्यू से सर्टिफिकेशंस आप किए हो, तो ये अगर आपके पास सीएफए की डिग्री है तो बेटर नॉट टू यू चू चेज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक. अभी तो देखो पेंशन भी नहीं है, तो ऐसा लगता होगा इट इज समथिंग अट्रैक्टिव दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर. आई हैव वर्क इन various public sector banks and I would advise if you have a skill set, आपके पास नॉलेज है, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको खराब मत करो. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर द पुअरेस्ट एंड वर्स्ट मैनेज्ड बैंक इन द इंडस्ट्री. आपके पास कोई भी स्किल सेट है वो वहां पे खराब ही हो जानी है. अगर आपके पास डेरिवेटिव एनालिसिस है तो आपको केसीसी कराएंगे. अगर आपको क्रेडिट का अच्छा नॉलेज है तो आपको रिस्क में बैठा देंगे. तो इस तरह का कुछ नहीं है. अगर आपके स्किल सेट अच्छा है तो ठीक है. अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है और आप देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर आल्सो गेटिंग द ब्लड ऑफ एम्प्लॉइज. प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो हैं वो आपका खून पी रहे हैं. ओनली सम ऑफ देम आर बिन. तो अगर हम पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन करें तो पब्लिक सेक्टर आज ऑलवेज प्रोवाइड यू बेटर पोजीशन फॉर जॉब सिक्योरिटी, लीव्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके. और थोड़ा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बचा रहता है. प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये सब नहीं है. स्किल सेट है तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में टॉप पे जा सकते हो.
आपका अगर मनी एक मोटिव है और आपके पास स्किल सेट है तो पब्लिक सेक्टर बैंक मत आओ। मनी का मोटिव पब्लिक सेक्टर बैंक में कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितना सैलरी मिलेगी आप उससे ज्यादा लोन ले रखे होगे। ठीक है, तो कंपेरेटिवली इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है। ठीक है, और नेगोशिएशन जैसा भी कुछ नहीं है, फिक्स है। 2 4 10 हड़तालें होंगी और आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट लग जाएगा। चलो, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारी चीजें हो गई अलग से। 22 ईयर्स से 35 ईयर्स की एज के लिए है, तो आप अगर 35 ईयर्स तक हो तो आप भर सकते हो। 5 to 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी में मिलता है, तो इट में गो 40 to 50। ओके। जॉब प्रोफाइल क्या करना है? ओवरऑल कंट्रोल ऑन ब्रांच बैंकिंग। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी ब्रांच में हो रहा है, अकाउंट ओपनिंग से लेकर के कस्टमर से बात करना, एनपीए रिकवरी करना, एवरीथिंग, और उसके बाद ऑडिट की रिपोर्ट, डीएम की मीटिंग अटेंड करना, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग अटेंड करना, कंप्लेंट को रिजॉल्व करना, कस्टमर से माफी मांगना, एवरीथिंग आपको करना है। अचीवमेंट ऑफ बिजनेस टारगेट्स, ये देखो ये पहले ही लिखा हुआ है। जनरली अनरियलिस्टिक टारगेट सभी मिल रहे हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टिकुलर बैंक की बात कर रहा हूं पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। अच्छा, छोटे बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे हैव ए वेरी लिमिटेड स्कोप, और वो compete कर रहे हैं डीएसआई बीच से, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। द बिगेस्ट फ्लॉ लाइज इन हियर। कैरिंग आउट अप्राइजल एंड ड्यू डिलीजेंस ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, मतलब आपको लोन करना है। एडेरिंग टू टर्न अराउंड टाइम, मतलब अगर आपको 3 दिन में लोन देना है तो आपको आएगा कि भाई इस कस्टमर ने 3 दिन में लोन का प्रपोजल पेंडिंग है, क्यों नहीं हुआ। इंश्योरिंग अचीवमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी RAROC, ओके, फॉर ईच यूनिट इन AMT KRA रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल अप्राइजल। देखो भाई, ये ये कितनी ये कितनी बेवकूफी वाली चीज लिखी है इसने। स्केल टू जर्नलिस्ट ऑफिसर ले रहा है और उसको कह रहा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिस्क वाला करेगा और डिसाइड करेगा ये आपका डिपार्टमेंट कि भाई RAROC मीट हो रहा है कि नहीं, कि स्केल 2 वाला रिस्क एडजस्ट करेगा। फॉर ईच यूनिट AMT केयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस एंड अप्रेजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्रेडिट में बैठाएंगे, वहां पर आपको RAROC कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, RAROC इसको पता भी है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्केल 2 में ये चीजें इनका डिजायरेबल है, मतलब जितना भी इन्होंने पाया है न्यूज से छाप दिया है। ठीक है, और जो बंदा ये एडवर्टीजमेंट बनाया है उसको मैं क्या कहूं, वो रिस्क RAROC कैलकुलेट करेगा भाई क्या। चलो ठीक है, सीधे लिख देते हैं अप्राइजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स, इंश्योरिंग द गाइडलाइंस इन फोर्स, हो जाता। RAROC आपका मार्कअप कितना है, उसे किस पे क्या करना है आपको, कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप फिक्स किए हो भाई इतना रहेगा RAROC, तो हम इस प्रपोजल को ऐसे करेंगे, तो ठीक है चलो। इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ KYC नाम सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट्स एज पर RBI गाइडलाइंस, obtaining data information from customers for assessment and processing of the proposal, मतलब कस्टमर से भाई मांगना है आपको डेटा कि हम ये आपका लोन कर रहे हैं, हमें सिविल तो आप निकालोगे, अपना इनकम टैक्स दे दो, अपना फॉर्म दे दो, फॉर्म 16 अगर आप करते हो, कोई और टैक्स डिडक्शन है, कुछ डिडक्शन है, उसकी डिटेल्स दे दो। ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर मीट्स, ठीक है, सुपरवाइजिंग जॉब रोटेशन, अगर आप ब्रांच हेड बनते हो तो भाई सबको 6 6 महीने पे जॉब रोटेशन करना है, भाई इस डेस्क पे अगर ये
अच्छा, इन्होंने जॉब रोटेशन पब्लिक सेक्टर में, भाई जॉब रोटेशन भाई बहुत बड़ी चीज है, इसको भी थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जनरली एक पोर्टफोलियो आपको मिलता है। जॉब रोटेशन का मतलब यह है कि ये आप मान लो ब्रांच हेड हो यहाँ पे, और आपके पास एक क्लर्क है, एक ऑफिसर है, यही मिलता है स्केल टू ऑफिसर को ज्यादातर इस टाइप के बैंक में। और बैंक में स्टाफ सफिशियंट हो सकते हैं, बट इस टाइप के बैंक में, छोटे बैंक्स में स्थिति खराब है कि अब आपको एक तो क्लर्क हो गया जो कैश से बैठेगा, एक वाउचर पास करेगा या और बाकी पासबुक प्रिंटिंग और ये सब भी काम देखेगा। उसके बाद आप इसको बोलोगे भाई आज 2 लोन के प्रपोजल देख लेना, विजिट कर लेना, कस्टमर मीटिंग कर लेना, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज देना, ईओडी चेक कर लेना, एफडी की रिसीट दे देना, ठीक है, एनपीए की रिकवरी भी कर लेना, कोल्ड कॉलिंग भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अब जॉब रोटेशन कर दो, मतलब इसको क्लर्क वाला जॉब दे दो, इसको ये कैसे बैठा दो। भाई ये अब जब ऑफिसर को क्लर्क के साथ तो रोटेट तो कर नहीं सकते अभी। अच्छा, ये अगर ऑफिसर होगा तो ये पूरे काम ये भी देख रहा होगा। पहले जॉब रोटेशन का मतलब ये था कि भाई ब्रांच में जो भी काम हो रहा है सबको पता चल जाए, वो चीज जानना। दूसरा, कोई अगर एक ही डेस्क पे कुछ फ्रॉड या मेल प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो पता चल जाए। भाई अब एक ही बंदा सब कर रहा, उसको सब कुछ पता है, एवरीथिंग ही नोज हाउ यू आर मैनेजिंग द जॉब रोटेशन। चलो, पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छी बात है। आगे चलो देखते हैं कि और क्या क्या काम आपको करने हैं। फॉलो अप ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अगर आप जेडो में हो, मतलब रीजनल ऑफिस में हो, तो आपको ब्रांच से बोलना है भाई ऑडिट रिपोर्ट जल्दी जल्दी दो, रिजल्ट डिक्लेयर होना है। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ब्रांच रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस, मतलब कौन लॉकर ऑपरेट किया तो क्या क्या हुआ, कब आपका अलार्म चेक करने आया उसका रजिस्टर क्या है, स्टाफ का क्या रजिस्टर एंड डिटेल है, ये आपको मेंटेन करना है। गिविंग ए ग्रेटर अटेंशन टू प्लानिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, चार्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ, एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस टू। देखो यही जो इतना रोल फंक्शन लिखा है, इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक पूरी जिंदगी में कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये जो आज ये जो इन्फ्लेटेड फिगर्स दिख रही है ना सबके प्रॉफिट और इनकी, सही से अगर कोई चेक करने वाला हो तो आप एक काम करो, मुझे तो लगता है मुझे आरबीआई को लिखना पड़ेगा और लिख भी दूंगा। आप केवल इनकी क्या है ना, इनकी 20 मार्च से और 31 मार्च की पोजीशन देखो, कासा पोजीशन, और कुछ नहीं देखना है। उसके बाद 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कासा पोजीशन देख लो, आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा कि भाई क्या किया है, कहां से पूरा फंड पूरा विंडो ड्रेसिंग करके घुमा दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसकी गारंटी नहीं कर रहा हूं, बट पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब ही होता है भाई ट्रांसपेरेंसी, क्लियर पिक्चर रखो। आप अगर खराब हो, इन्फ्लेट मत करो, पब्लिक का मनी, पब्लिक का ट्रस्ट, गवर्नमेंट की वजह से लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। अभी एक बंदे को इतना काम दे रखा, आप ये सोचो, ये सब काम। अच्छा, ऐसा नहीं कि रोल फंक्शन में आपको एक कोई की एरिया मिलने वाला है, ठीक है, बट जॉब सिक्योरिटी और पर्सपेक्टिव से अच्छा है। बट आपके पास अगर हायर डिग्री है, सीएफए है, एफआरएम है, आपने उसमें प्रैक्टिस की भी है, जस्ट स्विच। और भी डेटा एनालिटिक्स के में मजबूत करो, थोड़ा एक्सेल और पावर बीआई ये सब चीजें देखो, एनालिटिक्स करो, कुछ डिसीजन मेकिंग वाला काम करो, ठीक है। कंपनीज आर रेडी टू पे यू मनी इफ यू हैव साउंडनेस ऑफ दैट नॉलेज। तो ये चीजें आपको करनी है। मेंटेनिंग इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस एंड इंश्योर कर्टेसी इन डीलिंग विद द कस्टमर्स, मतलब भाई कस्टमर से, आप कस्टमर गलत हो तब भी नहीं करना है, चलो ठीक है। इंश्योर एडहेरेंस टू टेलीफोनिक डिसिप्लिन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ स्टाफ, मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस इन द ब्रांच ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, डिस्पोज द मैटर्स एज पर फोर्स
rules in force except to those require personal attention on the branch manager। मतलब आप कह रहे हो फोन पे भी आराम से प्यार से ही सब कुछ देखना है, चाहे वो आपको गाली दे रहा हो, आपको काउंटर नहीं करना है एक्चुअली। redressal of grievances of customers as per rules, notice of the branch head customer unpleasant instances, ensure maintenance of adequate stock security items, passbook, publicly literature, various forms, required deposits, monitoring the matters related to claims of the assets deceased customers and ensuring quick disposal, अटेंड टू इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, मतलब अगर कैश रिटेंशन लिमिट्स ज्यादा है कहीं भी उसे हटाओ। स्क्रूटनी ऑफ डेली वाउचर्स देखो। चलो ये तो अच्छा है कि भाई कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो पकड़ में आ जाता है, ये तो आपको करना ही चाहिए। मॉनिटर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल इंटेंट, मतलब एनुअल इंटेंट क्या होगा, स्टेशनरी का क्या कैसे लगना है क्या है। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर कैश ट्रांजेक्शन एक्सेडिंग 10 लाख, ये तो आपने जनरल बैंकिंग में पढ़ा ही होगा, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ 24 पॉइंट, इंश्योर पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अटेंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। चलो भैया और देखो रोल फंक्शन में क्या है क्या है। ये कितना था, 24, 25, 26, 26 है, और हर एक ड्यूटी एक पैराग्राफ की तरह है। takes step into loopholes in transgression of system and procedures to unfair practices and may cause operational risk, future losses. Okay. Ensure compliance of bank's policy and guidelines, timely submission or report to reporting authority. The above roles and responsibilities are indicative, मतलब may assign additional KRAs। तो भाई अगर इसको देखो तो आप अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं याद कर पाओगे, उतने तो एनआई एक्ट में डिटेल्स नहीं है जितना इन्होंने दे दिया है। तो ये ऐसा नहीं किस बैंक का है, एवरी बैंक का है ऐसी चीजें, तो वो चीजें आपको नहीं देखनी है। आपको ये देखना है कि भाई जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेट सेक्टर से स्विच होना है, हो जाओ, यस, ओके, गुड। और सबसे बड़ी बात है इसका पेपर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, अगर जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा, सबसे इजी पेपर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही आता है, सबसे इजी पेपर। मैं तो कहूंगा सबसे फालतू पेपर भी रहता है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं इससे। सेंट्रल बैंक ने एग्जाम लिया था इससे पहले, सेंट्रल बैंक ने, भाई क्या क्या गजब पेपर था। पूरी सीट दे रखी थी बैलेंस शीट देने के लिए, कैलकुलेट करो, करंट रेशियो कैलकुलेट करो, क्विक रेशियो कैलकुलेट करो। उसने तो टर्नओवर मेथड और ये सब एमपीबीएफ और इन सब के अलग से एक मेथड 3 था, उसको भी पूछ लिया था। तो ठीक है, ऐसा चीजें पूछोगे भाई उसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, सीधे आपने कुछ पेजेस रटे और इनसाइड तो ठीक हो। ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी भी है ना कि भाई पेपर इजी है तो यू विल गेट इन। तो आपको अगर कोचिंग नहीं करनी है मत करो, बस रेगुलरिटी से पढ़ते रहो। स्पेशली इस एग्जाम में फोकस करना है आपको जनरल बैंकिंग, कोर जनरल बैंकिंग, कोर जनरल बैंकिंग आप फोकस करो, पूरा याद कर लो, हो जाएगा। ओके। और अगर आप बिग बुक जो शेयर्ड है वो, और करंट अफेयर्स हाफ ईयरली और जनरल बैंकिंग की जितनी पीडीएफ सीबीओ के लिए शेयर हुई है, अगर उतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो देन इट विल गो फाइन। अच्छा, ये सब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31/7/2025, मतलब 31 जुलाई तक ये चीजें आपको हो जानी चाहिए। ओके। चलो, ये सब चीजें अभी अपने काम की नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूरी है। वेट अ मिनट, ये
थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज एन इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरियाज ब्रांचेड इज प्रेफरेबल। मतलब अगर आपने लोन में काम किया है एडवांसेस में और ब्रांच हेड एज ए ब्रांच हेड काम किया है तो आपको प्रेफरेंस देंगे, और 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज एन ऑफिसर। तो अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर एएम ग्रेड की डीएम, भाई देखो एसबीआई में तो निकाल देते हैं एएम ग्रेड को जनरली, लेकिन इस बैंक में कुछ लोग एएम ग्रेड वाले भी आ चुके हैं, पहले पिछले गए हैं, सिलेक्ट हुए। तो आप एएम डीएम मत देखो, सीधे अप्लाई कर दो। ठीक है, जॉब प्रोफाइल हमने देख लिया कि 26 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो 6 month का प्रोबेशन पीरियड है और 2 लाख का बॉन्ड है, मिनिमम सर्विस पीरियड। मतलब 6 month में आपको कंफर्म कर देंगे। तो आप जैसे लीज हो गया, अभी तो प्रोबेशन वालों को भी लीज वीज देने लगे हैं, लीज हो गया, बाकी पेट्रोल और ये सब अलाउंस है जो 100 200 500 1000 2000 5000 मिलते हैं, वो आप ले सकते हो, उसके लिए एलिजिबल होके। अच्छा, दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड थ्रू द रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब ये आईबीपीएस कराएगी। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3, 1:3, मतलब 1:3 के बेसिस पे इस तरह से किए जाएंगे, 1:3 के रेशियो में वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ऑन देयर रैंकिंग, the allocation of marks for online examination and interview is 150 and 75। मतलब देखो 150 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसका लिया जाएगा 75% और इसका लिया जाएगा 25%। ओके, ओवरऑल मार्क्स बन जाएगा विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 75 इंटू 25। ओके, देखो एक्चुअल में ये 75% नहीं है, ये 75 मार्क्स है। मतलब जो 150 मार्क्स का है उसको 75 मार्क्स से इक्विवेलेंट करेंगे, और जो 100 मार्क्स का है उसको 25 मार्क्स से इक्विवेलेंट करेंगे। ओके, अब देखेंगे कि भाई इसमें कितने मार्क्स वो टोटल पाया है। जैसे मान लीजिए आपने रिटेन में पाया 50 मार्क्स, तो 150 में आपने 50 पाया, तो 75 मार्क्स में कितने पाओगे? 25 मार्क्स। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने इस 75 वाले मार्क्स में आपने पाया 25 मार्क्स। ऐसे ही अगर आपने इंटरव्यू में 50 मार्क्स पाया तो 25 में कितना पाते आप? 25 पाते, तो टोटल आपको 100 में से मिल गए 50 मार्क्स। तो इस तरह से उनका होगा। ये हमने समझाने के लिए बोला कि भाई आप 75% करो, एक्चुअल में 75% जैसा नहीं है ये, इसके 75 मार्क्स के इक्विवेलेंट है। ओके, अच्छा इन्होंने बता दिया कि भाई इंटरव्यू के लिए आपको 50% आपको पाना है, मतलब 100 में से 50, मतलब 50 में से 25 मार्क्स आपको पाने हैं, और 25 मार्क्स का है अगर तो 20.5 मार्क्स पाने हैं। मतलब अगर आपको 11.9 भी दे दिया तो आप फेल हो जाओगे। ओके, कंबाइंड स्कोर शैल बी अराइव्ड बेसिस। ठीक है, इस तरह से कंबाइंड स्कोर बनेगा और आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का। देखो इधर पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। एसबीआई सीबीओ में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। ये वेरी इजी आता है, इंग्लिश तो वेरी इजी आता है।
ये इजी आता है, ये इजी टू मॉडरेट आता है रीजनिंग। अब ये तो डायरेक्ट केवल फैक्ट बेस्ड रहता है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है आपको, केवल बुक याद कर लेनी है और आपका हो जाएगा। ओके, बस सिंपल से ड्यूरेशन दिया हुआ है 20 20 20 20 और 60, 2 आवर्स में आपको पेपर खत्म, काम ओवर। ओके, तो अच्छा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, बस फोकस ऑन 1 ईयर आरबीआई गाइडलाइंस, वो फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, एग्जाम जोन 247 के आप ले सकते हो। सेकंड, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग जनरल बैंकिंग, तो जो भी पीडीएफ शेयर किया हुआ है सीबीओ के लिए वो मोर देन इनफ है, इसके लिए आप कर सकते हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 5000 क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, उसमें से ही आएगा, उससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उससे बाहर पूछेगा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। कवरिंग ऑल टॉपिक्स। ओके, तो इस तरह से आपको केवल ये 2 चीज, इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना, 1 पैराग्राफ 1 पैसेज डेली। रीजनिंग, क्लर्क प्री लेवल, क्लर्क प्रीलिम्स, क्वांट, क्लर्क प्रीलिम्स, इससे ज्यादा टफ चीजें मत पढ़ना, किसी काम की नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का क्वांट एंड रीजनिंग, बस 1 पेपर करो, खत्म। पीओ का भी नहीं करना है आपको, क्लर्क का प्रीलिम्स करना है, वैसा ही पेपर आता है। ठीक है, तो होप यू फाइंड दिस यूजफुल। अगर कुछ पूछना है तो यू में टेक्स्ट इन द कमेंट। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले भी भर सकते हैं, पेमेंट बैंक्स वाले भी। पेमेंट बैंक्स का कोई से दिया नहीं, अगर शेड्यूल कमर्शियल में, वैसे तो वो आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको भरना हो तो भर सकते हो, इफ दे कंसीडर देन इट इज गुड। बट स्मॉल शेड्यूल कमर्शियल बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले भर सकते हो। ठीक है, ओके, होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल।